Good evening, everyone. Welcome to today's session of our Modern India lecture. So, what today we are going to do is today we will continue our discussion with our Modern India series that we started, and in that continuity, we are going to now we'll take the topics one by one. So, our first topic for today is the advent of Europeans in India. So now in the last class we have discussed about this, but let's focus now on the specific things that happened during that time period. So as you all know, that the Europeans started coming to India by the end of 15th century. So by the end of 15th century, actually two things happened. First, they discovered direct sea route to India. They discovered sea route, and second, they the after the discovery they started taking voyages towards India. Now why India was important? Because India was one of the most important trade center at that point of time, और ये इसके बारे में मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ कि ये ट्रेड सेंटर इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज वी वर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल as well as spices as well as food products या crops आप कह सकते हो. So these were the things that made India one of the hottest destination at that point of time for trade, especially with Europe, because Europe was at that point of time was completely dependent upon the trade that they were having with the East. So in this scenario we have to discuss our first topic, which is the advent of Europeans in India. This is your also the first topic of your Modern India syllabus, whichever exam you are trying to give in coming months. So today we are going to discuss about the first subtopic, that is advent of Europeans, and in this we will discuss about the early developments which happened with the coming of Europeans to India and how they established their initial establishments. So the first thing that you have to keep in mind is the first Europeans who came to India were Portuguese. So Portuguese were the first one to come to India. So a Portuguese traveler goes by the name of Vasco da Gama. He landed on the coast of Calicut, where he discovered the direct sea route to India. So what was the sea route? So actually he from Europe he sailed all across the coastline of Africa and then he finally reached India. So he sailed across Africa in the Atlantic and then he entered the Indian Ocean and then he reached India. Now, the early possible trading stations that were established by Portuguese were all along the coast, basically Calicut, Cannanore, Kochi. So basically, the southern India was the first region where Europeans started establishing their centers. Now, predominantly these centers were meant for only trade. एक चीज आपको याद रखनी है कि उस समय पे जितना भी फोकस है वो फोकस ट्रेड के ऊपर है. So we are not talking about the political expansion here. The initial phase we are only talking about the kind of uh, economic establishments that were created by Europeans. Now going into in this further, the first governor of Portuguese in India. It is a very important question for you in case of your competitive examination. His name was Francis de Almeida. So all the Portuguese settlements in India were under the leadership of their first governor for India. His name was Francis de Almeida. But Portuguese started expanding under the governorship of one of their most famous governors. His name was Albuquerque. He was one of the most powerful Portuguese governor in India, and they captured Goa from the local ruler in 1510.
and they also captured the southern regions of Indian Ocean, Malacca, Strait of Malacca, and Ceylon. Ceylon is the old name of Sri Lanka. So, after coming to India in 1498, the Portuguese started establishing their centers in India, and with the help of their powerful navy and with the help of the kind of ships that they were building, they were able to establish their presence all along the coastline in India, and they were also able to capture some of the prominent ports and positions in Indian coastline. And for them, Goa was the center. That is why Goa was the capital of the Portuguese settlements in India. And this is the reason, since Goa was under the Portuguese influence from the 16th century, that is the reason that if you still go to Goa, you will find those Portuguese culture there. आपको पोर्चुगीज कल्चर वहां इसीलिए मिलता है क्योंकि गोवा वाज द पोर्चुगीज सेटलमेंट सिंस 16th century. So that is the reason that you find that Goa is under the Portuguese influence. यही सेम इन्फ्लुएंस आपको इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे मिलता है जब आप पुडुचेरी विजिट करते हैं. इफ यू एवर गो टू पुडुचेरी यू विल फाइंड देयर इज अ फ्रेंच कल्चर. Why? Because Puducherry, or earlier name was Pondicherry, Pondicherry was the French settlement, and it happens to be the capital of French establishments in India. So wherever Europeans established their dominance, wherever they established their centers, you will find the culture of Europeans, the cultural transactions happening in India. That is the reason if you go to any of the cities, especially those cities where we have the presence of Britishers, you will find that European touch, whether it is in the names of the roads or whether in the architecture. So if you visit Calcutta, or the nowadays we call it Kolkata, or you go to Madras or Chennai as we call it today, or even if you go to Delhi, the region New Delhi, or wherever the Britishers went and wherever they had their stations, you will find that touch. So one of the important contribution of that Europeans coming to Indian subcontinent is that they also brought their culture, their techniques of buildings, their techniques of food, their warfare techniques, everything they brought along. So you find that culture being amalgamated into already flourishing diverse Indian culture. So wherever we have if we have some people coming from outside and establishing their dominance, or they are establishing their presence in a new region, you will find cultural transactions. Sometimes they are positive, sometimes they are negative, but overall, if you see, every migration of any kind actually contributes into the history and culture, as well as the way of living of that particular region. It happens today also. So if somebody comes from India and he or she chooses to go abroad and settles in some other country, so what he or she is doing, he is bringing that Indian culture to that new place, and also he or she is also learning that culture which is there at the new place. Now whenever he or she comes back to India, he or she will then be transmitting that foreign knowledge to India. So this is how cultures all over the world actually deal. तो जब यूरोपियंस इंडिया आए तो उनके साथ उनका कल्चर भी आया, एंड दैट इज व्हाई यू सी ऑल दीज इन्फ्लुएंसेस इन दीज सिटीज. सो पोर्चुगीज के जो मेजर सेंटर्स थे जहां से वो ट्रेड करते थे, उसमें था दमन, सालसेट, बॉम्बे, सैंथोम इज अ रीजन नियर मद्रास, एंड हुगली इज इन बंगाल. सो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि बॉम्बे वॉज अ पोर्चुगीज सेटलमेंट. बॉम्बे एक पोर्चुगीज सेटलमेंट था, लेकिन इसको पोर्चुगीज ने गिफ्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स को. So when English East India company came to India and they started establishing their centers, तो Portuguese ने बॉम्बे गिफ्ट कर दिया. It was a dowry gift given to the crown of England. Why? Because Portuguese princess Catherine married to the crown prince of Britain. इसकी वजह से बॉम्बे, जो एक पोर्चुगीज सेटलमेंट था, जो हार्बर सेटलमेंट पोर्चुगीज का था, वो बाद में ब्रिटिशर्स का हो गया, और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनुअल रेंट पे क्राउन से ले लिया, एंड बॉम्बे बिकेम द सेंटर फॉर ऑल द वेस्टर्न ऑपरेशंस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितना भी वेस्टर्न कोस्ट पे या जितना भी वेस्टर्न इंडिया में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते थे या जो भी कंट्रोल था, वो बॉम्बे से किया जाता था.
तो ब्रिटिशर्स के जो 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, जो 3 सेंटर्स थे इंडिया में, उसमें वेस्ट में था बॉम्बे, साउथ में था मद्रास एंड ईस्ट में था कलकत्ता. And since they established their direct control for the first time in Bengal after winning the Battle of Plassey and subsequently winning Battle of Buxar, that is why Calcutta became their capital for whole of India. So these are the small things that you have to keep in mind. देखिए, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें don't go into the dates and names and don't get confused or don't get afraid after reading so many names and dates, because see, history is all about how you are actually able to grasp and learn the story. So if you take it everything in a form of a story or in a form of characters, and you will find that everything is actually correlated. So if you let's say I give you a fact that Calcutta was the capital of the first capital of British India was Calcutta. It was only transferred to Delhi in 1911. Now the question comes in your mind is, why Calcutta? Why not some other place? So the reason was that since Calcutta or Fort William at that point of time was the center of eastern operations in India, and since they were able to capture the political control of the region by defeating the Nawab in Battle of Plassey and subsequently in Battle of Buxar, so since they got the Diwani and the Nizamat of Bengal region, and Calcutta was part of Bengal region, that is why they made Calcutta their capital. So these are the small things. Actually, if you read history, whether it is ancient history or modern history or any other history for that matter of any country, if you read the history along the lines of being uh, aware of the fact that everything is related, then it is easy for you to understand. Because once you understand the timeline and the story behind it, then it is very easy for you to remember everything. So please remember, history is not about only the dates and the names. It is about the story and the things that are happening. So what happened? 1498, Portuguese traveler Vasco da Gama landed on the coast of Calicut in Kerala, modern day Kerala, and thereby he discovered direct sea route to India, where Europeans can come to India directly for trade, obviously. So they started coming in huge number. Portuguese were leading it because they were the first to discover it. So they, in the first wave, they came to India and they established their settlements. They also captured some local stations here from the local rulers in order to establish their dominance, in order to control the trade. So this was the first wave of Europeans that came to India by the end of 15th century, in the early 16th century. Now what happened next? The next batch of Europeans that came to India were Dutch. So when we say Dutch, Dutch is basically people of Netherlands. So in order to trade with India, Dutch East India Company was established, and it was established in 1602. When they came to India, they also established their trading settlements at places called Masulipatnam, Pulikat, Surat, Karaikal, Nagapattinam, Chinsura, Kasim Bazar, and out of that, Surat, Nagapattinam, Pulikat, these were the main centers. So when you see these centers name, you have to keep in mind the focus at that point of time of Britishers was to stay as close to the coast as possible, because their main focus was to quickly purchase the products from the Indian markets and sell it and take it to their ships and sailed it back to Europe. So earlier settlements, whichever European community you are seeing, whether it is French, English, Dutch और Portuguese, तो आप एक ही चीज देखेंगे कि ज्यादातर सबका फोकस कोस्ट लाइन पे है. या तो कोस्ट लाइन पे वो अपनी फैक्ट्रीज या एस्टेब्लिशमेंट स्टैब्लिश कर रहे हैं, या फिर वो उस जगहों पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं जहां पे वो मार्केट्स हैं, जहां पे इंडियन प्रोड्यूस जो है, वेदर इट इज स्पाइसेस और वेदर इट इज कॉटन, वो वहां से वो प्रोक्योर कर सकते हैं. जैसे सूरत एक बहुत बड़ा हब था, मसूलीपट्टनम बहुत बड़ा हब था, सिमिलरली पुलिकट वाज अ वेरी बिग हब ऑफ ऑल द लोकल मार्केट्स इन इंडिया. तो जो जो फोकस है वो ये है
कि हमारा जो भी इस्टेब्लिशमेंट है वो लोकल मार्केट जहां से हमें सामान लेना है उसके पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ कोस्ट के साथ होना चाहिए, ताकि प्रोक्योरमेंट हम यहाँ से कर सकें और फटाफट कोस्ट कोस्ट को एक्सेस करके हम अपने शिप्स में उस प्रोक्योर्ड गुड्स को वापस शिप कर सकें. So that was the main agenda. However, Dutch are not much influential in our history. The reason being, when Britishers came, actually Dutch lost all their territories to them. तो डच का इन्फ्लुएंस इतना नहीं है इंडिया में. उसका रीजन ये है कि जब अंग्रेज इंडिया है तो ब्रिटिश actually captured all the Dutch settlements. So Dutch primarily lost their settlements in India, but they established themselves in Southeast Asia. बट डच ने अपने आप को साउथ ईस्ट एशिया में स्टैब्लिश कर दिया. तो जो स्पाइस आइलैंड्स थे इंडोनेशिया और जावा और सुमात्रा के, वहां पे आपको डच सेटलमेंट्स मिलते हैं. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो सेटलमेंट्स नहीं है, बिकॉज दे लॉस्ट देयर सेटलमेंट्स टू ब्रिटिश, क्योंकि अल्टीमेटली ऑल दीज आर प्राइवेट ट्रेडिंग फर्म्स बैक्ड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स. तो ये आपस में दे आर कंपीटिंग फॉर द मेजर चंक ऑफ द ट्रेड. तो उसकी वजह से राइवलरीज भी हैं. तो उस राइवलरी में ब्रिटिश वर एबल टू डिफीट द डच. एंड इसके साथ साथ पोर्चुगीज से दे गॉट कंट्रोल ऑफ श्रीलंका. एंड सो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम श्रीलंका वाज अंडर डच कंट्रोल, व्हिच वाज अल्टीमेटली टेकन ओवर बाय ब्रिटिश अगेन. तो डच का जो इन्फ्लुएंस है वो उतना इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलता. उसका रीजन ये है कि जब ब्रिटिशर्स आए तो डच लॉस्ट देयर सेटलमेंट्स टू देम. ठीक है. नाउ द मेन थिंग स्टार्ट्स विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है. So our major topic for the day is how they came to India, what were their earlier settlements, and with this we are going to start our British conquest of India. We will go into the reasons and other things in a in when we study the impact of the rule, but now today we are going to just see how things happen. So as you all know, in 1498 when Portuguese traveler Vasco da Gama landed on the coast of Calicut, he discovered the direct sea route to India from Europe via Cape of Good Hope. केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के टिप को इसीलिए बोला जाता है बिकॉज उसके, अगर आप अफ्रीका को देखेंगे तो ये जो टिप है इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप. और इंडिया यहाँ है, और यहाँ से वो सेल करके नीचे से यहाँ पहुंचे. सो दिस इज कॉल्ड केप ऑफ गुड होप, टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. अब सी रूट होने से हुआ क्या? सी रूट होने से ये हुआ कि जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे दे स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया, as subcontinent was one of the major trading centers of Asian trade. और इंडियन गुड्स जो थे वो यूरोपियन रीजन्स में बहुत डिमांड में थे. ठीक है. अब जब तक ये डिस्कवरी नहीं हुई थी, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जब तक ये सी रूट का डिस्कवरी नहीं हुआ था, जो ट्रेड होता था वो लैंड रूट के थ्रू होता था. और उसमें जो मेजर एशियन पोर्शन था ट्रेड का उसको अरब ट्रेडर्स कंट्रोल करते थे, और जो यूरोपियन ट्रेड थी उसको इटालियन मर्चेंट्स कंट्रोल करते थे. तो आपको ऐसे याद रखना है कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया, तो जो ट्रेड होता था उसके बेसिकली तीन रूट्स थे. पहला रूट था एंशियंट सिल्क रूट. एंशियंट सिल्क रूट जो इंडिया में कश्मीर से होकर निकलता था, तो वो जाता था आपका चाइना से, तिब्बत होता हुआ इंडिया से उधर सेंट्रल एशिया निकल जाता था. ठीक है. दूसरा ट्रेड रूट था आपका पंजाब प्लेन्स के थ्रू. तो ईस्ट वेस्टर्न इंडिया के कॉरिडोर से, अगर आप मॉडर्न डे में देखेंगे तो पंजाब का जो रीजन है वहां से ये ट्रेड जो है वो अफगानिस्तान और ईरान और ऐसे होते हुए जाता था. और तीसरा जो था वो था आपका गल्फ ट्रेड. गल्फ ट्रेड कैसे होता था? गुजरात के कोस्ट से शिप्स जो हैं वो पहुंचती थी पर्शिया यानी कि ईरान, या फिर पहुंचती थी रेड सी में अरेबियन पेनिनसुला पे. यहाँ पे इन शिप से जो सामान होता था उसको डिपोर्ट करके बड़े बड़े कैरावेंस में लादा जाता था, और ये कैरावेंस फिर पूरा अरेबियन डेजर्ट और इराक और क्रॉस करके पहुंचते थे मेडिटेरेनियन, इजिप्ट वगैरह के आसपास. यहाँ से फिर इटालियन मर्चेंट्स इस सामान को टर्की से, और टर्की के पोर्ट से ये सामान फिर
इटालियन मर्चेंट्स अपनी शिप में लाद के यूरोप तक ले जाते थे। ये तरीका था जो 1498 की डिस्कवरी से पहले यूरोप करता था। लेकिन ड्यू टू द डिस्कवरी हुआ ये कि ये जो बीच का जो ये सारा का सारा मिडिलमैन का ट्रांजेक्शन था, ये खत्म हो गया। नाउ यूरोपियंस वर एबल टू कम टू इंडिया डायरेक्टली। उससे हुआ क्या, दो चीजें हुई। पहला, एक तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ गया बिकॉज नाउ दे आर कमिंग डायरेक्टली। और दूसरा, यूरोप में एक्सपेंशन शुरू हो गया बिकॉज नाउ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड से हुआ ये कि यूरोप और इंडिया दोनों में जो है आपको एक्सपेंशन देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट्स ग्रो करना शुरू कर दिए, डिमांड ज्यादा हो गई, तो उसे इंडिया में भी प्रोडक्शन बढ़ा और यूरोप में भी उसका असर आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज हाउ यू सी थिंग्स। नाउ लेट अस कम टू आवर मेन character of our modern Indian history. This is ईस्ट इंडिया कंपनी। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि जब भी आपके एग्जाम में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी या ईआईसी लिखा हुआ आएगा, तो आप ये मान के चलेंगे कि ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच आएंगे उनकी भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच आए उनकी भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, पोर्चुगीज आए उनकी भी ईस्ट इंडिया कंपनी। बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी नाम इसलिए है बिकॉज यूरोप के ईस्ट में इंडिया था और वहां पे कंपनी है जो ट्रेड करने जा रही है। ईस्टर्न रीजन में मेन सेंटर इंडिया था, दैट इज वाई इट बिकेम ईस्ट इंडिया कंपनी। सो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारी मेन यू कैन से कॉर्पोरेट बॉडी है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, उसकी शुरुआत कैसे हुई। सो व्हेन यूरोपियंस स्टार्टेड ट्रेडिंग विद इंडिया, तो इंग्लैंड के मर्चेंट्स और ट्रेडर्स और जो अरिस्टोक्रेसी या जो हाई बिजनेस ग्रुप्स थे या जो नोबिलिटी थी, उसके भी लोगों को लगा कि हमें भी ये करना चाहिए बिकॉज वी आर लूजिंग। बिकॉज इंडिया के साथ जो ट्रेड था वो बहुत प्रॉफिटेबल था और यूरोप में इंडियन गुड्स का बहुत डिमांड था। तो उस ट्रेड में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटिशर्स ने भी एक कंपनी बनाई, उसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी की शुरुआत 1599 में हुई। इस कंपनी में बनाने के लिए बहुत सारे जो वेल्दी मर्चेंट्स थे लंदन बेस्ड और जो अरिस्टोक्रेसी के मेंबर्स थे, उन्होंने एक कंपनी बनाई। कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया ताकि वो ट्रेड कर सकें ईस्ट में, और ईस्ट का मतलब था इंडिया। और ये ईस्ट कहां से देखा जा रहा है, ये देखा जा रहा है अफ्रीका के टिप से, ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप। और ईस्ट में हमें जाना कहाँ है, इंडिया। तो ये ईस्ट वहां से आया। ठीक है, ये कंपनी बनाई गई। इस कंपनी की खास बात ये थी कि उस समय की जो क्वीन थी एलिजाबेथ, यानी कि ब्रिटिश क्राउन जो था, वो इस कंपनी का शेयर होल्डर था। तो इस कंपनी को आप समझ सकते हैं कितना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो 1599 में जो कंपनी बनी, उसको अपना पहला चार्टर या लाइसेंस जो है ट्रेड करने का, वो मिला 1600 में। इस चार्टर की खास बात ये थी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल का एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए। ईस्ट में, ईस्ट अगेन हम देखेंगे तो ये ईस्ट देखा जाएगा अफ्रीका के टिप के ईस्ट से। तो अफ्रीका के ईस्ट में जितना भी रीजन था, एशिया हो, एशिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, चाइना हो, या साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा के जो रीजन थे, इन सब के साथ ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी ईस्ट में ट्रेड नहीं कर सकती थी इंडिया के साथ। उस समय पे होता ये था कि एक्चुअली में कंपटीशन कम करने के लिए और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता था कि मोनोपोली मिल जाए। मोनोपोली का मतलब होता है दैट वी आर द पीपल एंड इट इज बाय डिफॉल्ट आपको हमारी ही बात माननी पड़ेगी। जैसे आई गिव एन एग्जांपल, इंडिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उन उसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दे हैव अ मोनोपोली ओवर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन इंडिया। That is the reason if you see that on basis of their balance sheets and all, वो prices ऊपर नीचे करते रहते हैं बिकॉज उसमें कंज्यूमर का कोई से नहीं है, बिकॉज कंपटीशन नहीं है। मार्केट में कंपटीशन ना होने की वजह से कंपनीज के पास एक श्योरिटी होती है कि उनका प्रॉफिट ड्रॉप नहीं होगा। तो ये चीज जो है, ये मोनोपोली जो है, इसी को आज के टाइम पे हम बोलते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए।
बिकॉज मोनोपोली से दो चीजें होती है, एक तो बिजनेस का ग्रोथ उतना नहीं होता और दूसरा कंज्यूमर्स के लिए अच्छी बात नहीं होती। खैर ये तो मॉडर्न डे की बात है, बट उस समय पे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता था कि जो हमें लाइसेंस दिया जा रहा है उस लाइसेंस में वो टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दी जाए ताकि हमारा कंपटीशन ना हो। सो विद द बैकिंग ऑफ द क्राउन एंड द गवर्नमेंट इटसेल्फ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक प्राइवेट होल्डिंग कंपनी थी उसने भी इंडिया की तरफ रुख करा। और 1600 में जो चार्टर मिला, उस चार्टर को मिलने के बाद पहली फैक्ट्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टैब्लिश करी वो थी सूरत में। ठीक है, और वो कैसे करी? कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे विलियम हॉकिंस, जिनको ये रॉयल फेवर मिला मुगल कोर्ट से, क्योंकि उस समय पे इंडिया वाज मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट वाज अंडर द मुगल डोमिनेंस। तो मुगल एम्परर जहांगीर ने उनको परमिशन दी कि आप सूरत में अपना स्टैब्लिशमेंट स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसके साथ साथ वेस्ट कोस्ट में जहां पे भी हैं आप वहां पे भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो 1608 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत सूरत से हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछा जाता है कि वेयर वाज द फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, तो उसका आंसर है सूरत। इसके अलावा साउथ इंडिया में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री थी, पहली फैक्ट्री, वो थी मछलीपट्टनम। ठीक है, इट इज अ प्लेस फेमस फॉर इट्स कलमकारी डिजाइन एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल हब। सो फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया। ठीक है, ये एक ऑलरेडी पोर्ट टाउन था जिसमें डच सेटलमेंट्स थे, तो इसमें जाके ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली साउथ इंडिया में फैक्ट्री स्टैब्लिश करी 1611 में, वो थी मछलीपट्टनम। और जो पहली फैक्ट्री उन्होंने स्टैब्लिश करी इंडिया में वो थी सूरत। ठीक है, अब यहाँ पे बार बार एक वर्ड आ रहा है फैक्ट्री, इसका मतलब है वेयर हाउस। इस फैक्ट्री का मतलब आज वाला मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही, नहीं। इस वेयर हाउस को फैक्ट्री इसलिए बोलते थे क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लर्क्स काम करते थे, उनको बोलते थे फैक्टर्स। इन क्लर्क्स का काम होता था वेयर हाउस में जो गुड्स आ रहे हैं उनका बैलेंस मेंटेन करके रखना, उसको काउंट करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, इनका काम ये होता था। तो इस वजह से इन वेयर हाउसेस का नाम पड़ गया फैक्ट्रीज। इट हैज नथिंग टू डू विद मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। फैक्ट्री को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक एस्टेब्लिशमेंट जहां पे ब्रिटिशर्स आसपास के मार्केट से जो भी प्रोक्योरमेंट करते थे उसको लाते थे, वहां रखते थे और फिर उसको अपनी शिप्स में लोड करके भेज देते थे। यही स्टैब्लिशमेंट्स आगे चल के सिटीज में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि जब यहाँ फैक्ट्रीज, ये वेयर हाउसेज स्टैब्लिश किए गए तो यहाँ पे कंपनी ऑफिशियल्स के रहने के लिए क्वार्टर्स बनाए गए। जब ये क्वार्टर्स बने तो उन क्वार्टर्स में काम करने के लिए बाहर से लोग आना शुरू कर देते, तो धीरे धीरे फैक्ट्रीज के आसपास आपको विलेजेस और छोटे छोटे सेटलमेंट दिखना शुरू होते हैं। स्लोली 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 इट ऑल कन्वर्टेड इनटू सिटीज। सो दिस इज द बिगनिंग ऑफ दोज मॉडर्न सिटीज, वो चाहे मद्रास हो, कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, उन सब की शुरुआत इसी तरीके से हुई। नाउ नेक्स्ट, in 1615 now they have started establishing their things on west coast. Now they wanted the access to east coast, क्योंकि इंडिया के ईस्ट कोस्ट से चाइना के साथ ट्रेड होता था, तो चाइनीज गुड्स और साउथ ईस्ट एशिया से होने वाली ट्रेड जो थी वो इंडिया के ईस्ट कोस्ट से होके निकलती थी। तो उसका एक्सेस मिलने के लिए 1615 में एक और कंपनी के ऑफिसर सर थॉमस रो फिर से जहांगीर के कोर्ट में पहुंचे, और इस बार जहांगीर ने उनको एनुअल रेंट पे ईस्ट कोस्ट पे स्टैब्लिश करने के लिए फैक्ट्रीज की परमिशन दी। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो हैं दे आर बेसिकली ट्रेडर्स, सो दे आर आस्किंग फ्रॉम द स्टेट जो हमारे यहाँ उस समय पे पावर में है कि क्या हम ट्रेड कर सकते हैं, और इससे स्टेट को फायदा क्या हो रहा है? इससे स्टेट को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बिकॉज ब्रिटिशर्स आर आल्सो पेइंग टैक्सेस। तो इससे क्या हुआ? ब्रिटिशर्स स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर फैक्ट्रीज ऑन द ईस्ट कोस्ट। तो अभी तक तो सारा इन्फ्लुएंस इधर ही था, अब ये इधर भी होना शुरू हो गया। तो जो पहली फैक्ट्री उन्होंने ईस्ट कोस्ट पे एस्टैब्लिश की उसमें मद्रास थी, बालासोर थी और हुगली। सो 1633 में उन्होंने बालासोर स्टैब्लिश किया। बालासोर इज अगेन मॉडर्न डे उड़ीसा। 1639 दे स्टैब्लिश मद्रास,
और 1651 दे एस्टैब्लिश हुगली। ठीक है, जिस साल उन्होंने हुगली में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, उसी साल उनको जो सूबेदार ऑफ बंगाल थे, उन्होंने बंगाल में ट्रेड करने के लिए एक रॉयल फरमान दे दिया। इसका मतलब ये था कि कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एनुअल रेंट पे करना है, और उस एनुअल रेंट के बदले में वो बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि उनको जगह जगह पे टैक्स देने का जरूरत नहीं है। ये रॉयल फरमान उनको बंगाल के सूबेदार ने दिया था, शाह सूजा। Shah Shuja was one of the brothers of Aurangzeb and one of the sons of Shah Jahan. ठीक है, इट वॉज अ फ्री ट्रेड विद एनुअल रेंट। तो ये सारी फैक्ट्रीज भी स्टैब्लिश की गई। 1662 में जो मैं आपको कहानी बता रहा था वो यही है कि चार्ल्स टू, जो ब्रिटिश क्राउन में थे, ही मैरिड पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन। तो तब बॉम्बे को पोर्चुगीज ने एज अ डाउरी गिफ्ट दे दिया। तो जब बॉम्बे क्राउन के पास आ गया, तो 1668 में कंपनी ने बॉम्बे को एनुअल रेंट पे ले लिया, और वो एनुअल रेंट उस समय पे था 10 पाउंड। तो इस रेंट पे कंपनी ने बॉम्बे एक्वायर कर लिया, एंड बॉम्बे बिकेम देयर वन ऑफ द लार्जेस्ट शिपिंग पोर्ट्स। रीजन उसका ये था कि बॉम्बे में नेचुरल हार्बर था जहां पे शिप्स डॉक कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था 1698 में, दे एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री कॉल्ड फोर्ट विलियम। उन्होंने बंगाल में एक और फैक्ट्री बनाई, फोर्ट विलियम, जो आगे चल के इट बिकेम कैलकाटा। ठीक है, उसकी कहानी, फोर्ट विलियम के पास ही जॉब चार्नोक ने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, जो आगे चल के कैलकाटा में कन्वर्ट हो गई। सो फोर्ट विलियम के स्टैब्लिशमेंट के साथ ही कैलकाटा की कहानी शुरू होती है। इसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हम उनकी थी, उसमें थी आगरा, अहमदाबाद, पटना एंड ढाका। तो आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे, अगर आप 17th सेंचुरी को देखेंगे, सो ब्रिटिशर्स आर एस्टैब्लिशिंग देमसेल्व्स। दे हैव सूरत, दे हैव बॉम्बे, देन दे हैव मद्रास, दे हैव बालासोर, they have Hooghly, they have Fort William, then they have Agra, they have Dhaka also, they have Patna, and they have Ahmedabad. So they are slowly establishing their settlements. But still there is no political conflict, because 17th century Mughals are in India, and Mughals were very powerful at that point of time. So Britishers were establishing their trading settlements while India was going through very powerful Mughal period. तो अगेन ये फैक्ट्रीज जो हैं, ये एक्चुअली में वेयर हाउस नहीं थे। ये क्या थे? ये थे, सॉरी, ये फैक्ट्रीज जो थे वो किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेशन नहीं है जो आज आप फैक्ट्रीज को देते हैं। ये असल में थे वेयर हाउस, जहां पे सामान को रखा जाता था ताकि उसको बाद में ट्रांसपोर्टेशन में शिप्स में भर के यूरोप भेज दिया जाए। सो 17th century, when we talk about the history of India in 17th century, especially as when we talk about the history in the sense of Europeans, तो 17th century India में मेन जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस है वो यही है that they started, we see number of European settlements coming up in India. So Europeans started establishing their presence in India. Although at the trading front, now they are not involved in any kind of political rule here, but they started establishing their settlements. And 18th century, जब इसके बाद वाला time period शुरू होता है, and the moment Mughals and other prominent Indian powers started declining, now they started taking part in politics in India. Started with getting uh, concessions from the local rulers, then getting their people into the rule with the outside help, and then finally the third phase was getting themselves into the power. So Europeans actually they were very calculative in their stuff. तो उन्होंने पहला काम क्या किया, जब उन्होंने देखा कि लोकल रूलर्स आर पावरफुल, या लोकल रूलर्स जो हैं वो दे आर पावरफुल एंड वी कैन नॉट डिफीट देम, तो उन्होंने उनसे कंसेशन लेना शुरू किया। कंसेशंस कैसे लेने शुरू किए? जब उन्होंने देखा कि लोकल रूल डिक्लाइन कर रहा है, तो उन्होंने रूलर्स को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया और उनसे कंसेशंस लिए, बाय ब्राइबिंग देम और बाय गिविंग देम एक्सपेंसिव गेट्स और व्हाटएवर। देन
जब उनको लगा कि ये लोकल रूल जो है वो कम्प्लीटली नाउ इट इज इन डिसरे, तो उन्होंने क्या कि हो अगर यहाँ पे पावर में हमारा कोई बंदा आ जाए, तो दे स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल हु वांटेड टू बिकम किंग, पपेट नवाब्स जो उन्होंने स्टैब्लिश करने शुरू करे। फिर उसके बाद अल्टीमेटली जब पपेट नवाब्स स्टैब्लिश कर दिए एंड दे वर एबल टू एक्सेस द पॉलिटिकल रूल इनडायरेक्टली, जब उनको लगा कि नाउ वी आर इन अ गुड पोजीशन और अब हमें इस पपेट नवाब को हटा के खुद आना चाहिए, देन द थर्ड फेज स्टार्टेड, दैट वाज कॉन्क्वेस्ट। तो ये सारी चीजें हम इस ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज गो थ्रू दीज फैक्ट्रीज अगेन। Important part is you please remember these names. In the next class we are going to discuss about the British conquest, British occupation of Bengal and the Anglo-French rivalry. Because ये सारा काम जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ 1664 से 1668 के बीच में, फ्रेंच भी इंडिया में, एंड उस समय पे फ्रेंच एंड ब्रिटिश वर राइवल्स, जो कॉलोनियल रूल और इस ट्रेड को लेके आपस में दे वर फियर्स राइवल्स। तो जब फ्रेंच यहाँ आ गए तो उसके बाद इंडिया में शुरू होती है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। द मेन क्वेश्चन वाज कि इंडिया में कौन सबसे ज्यादा ट्रेड करेगा और सबसे ज्यादा शेयर जो है पावर का किसके पास रहेगा। So we have to study Anglo-French rivalry, जिसमें total we have to study about the wars and what were the policies, and then we will come back to our original topic, that is British occupation of Bengal. So in the next class we are going to study about Anglo-French rivalry, and if time permits we will also see how the occupation of Bengal started happening. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। Thank you so much guys, and if you have any questions please free to put up the questions in the comment section. I'll be happy to answer them all. Till then, till the next class, please study hard, focus on your goals, and take care of yourself. And thank you so much. Good night and Jai Hind. And in the last, please subscribe our channel for more videos like this. Thank you so much.